And we are starting with some breaking news coming in at top of the star. Nawab Malik's lawyer has now given an undertaking in the court that he will not now tweet against Wankede's family until the next date of hearing, that is December 9th. This is relating to the defamation suit that has now been filed against Nawab Malik by Sameer Wankede's family. And the latest that we are picking up is that Nawab Malik's lawyer has now given out an undertaking in court that he will not tweet against Wankede's family until the next date of hearing, that is December 9th. The court had, remember, slammed Nawab Malik, stating that why he was doing such cheap publicity. He could have gone to cast scrutiny committee directly instead of taking to social media platforms and tweeting out some defamatory statements against Sameer Wankede's family. And this is the latest update coming in of let me go across to Yesha, who's also joining us now. Yes, Yesha, certainly a big update coming in of Nawab Malik's lawyer that has now given out an undertaking in the court that he will not tweet against Wankede's family until the next date of hearing. Yes, because we had seen that last week Justice Jamadar had given a balanced hearing wherein he had said that Nawab Malik should tweet only after exercising due caution. Apart from that, the interim application of Sameer Wankede's family asking for Nawab Malik to stop tweeting was not accepted by the court. So in that context, the Wankede family decided to move a division bench of the Bombay High Court, wherein today Nawab Malik has clearly been questioned by the court, saying he being a minister, why did he post information in public? He, being a public official, could have in fact approached the Caste and Scrutiny Committee and recorded his objections to the documents of Sameer Wankede. In fact, apart from that, we also saw that this morning Nawab Malik had posted certain documents regarding Sameer Wankede's mother Wahid Wankede, wherein he had questioned their religion. So in that context, today the hearing was there in the Bombay High Court, wherein Nawab Malik has been in fact questioned by the court. And apart from that, we also understand that it was Nawab Malik's lawyer who had given an application stating that until the next date of hearing, that's until December 9th, he will not post anything against Sameer Wankede, which clearly means that questions have now been raised on Nawab Malik's tweets, because we saw over the last 1.5 months, Nawab Malik has been constantly questioning Sameer Wankede, and not only Sameer Wankede, but his family as well. So which is where Sameer Wankede's father, Dhyandev Wankede, had questioned and raised an objection before the court, stating that he's constantly being called Daud by Nawab Malik on a public platform, that is on social media, and which is where this entire development became important, because not only Dhyandev Wankede but also other family members of Sameer Wankede, be it his wife or for that matter his sister-in-law as well as his sister, were questioned by Nawab Malik on a social media platform time and again about their personal life. Now this was the objection that was raised by the family inside the courtroom, and this was where the defamation case was filed before the holiday court. But now the division bench is hearing this, and in the next hearing is where in fact Nawab Malik was also going to file another application before the court. Yes. किया गया और सेल्फी के कारण वो डील बिगड़ गई और उसे फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया। उनके पैदाइशी दाखिले से लेकर स्कूल के कागजात, शराब खाने का लाइसेंस, उनके पिताजी एक्साइज डिपार्टमेंट में थे, फिर भी माइनर को लाइसेंस दिलाने का काम किया। स्वयं एक IRS ऑफिसर रहते हुए शराब खाने का कंडक्टिंग लाइसेंस होते हुए वो भी सच्चाई उन्होंने छुपाई। अभी तक ये चीजें हमने सामने लाई थी और आज एक नई जानकारी लोगों के सामने हम ला रहे हैं कि ज्ञानदेव उर्फ दाऊद वानखेड़े, उनकी पत्नी का जब देहांत हुआ 16 अप्रैल 2015 में, उससे पहले जिस तरह से हाई कोर्ट में डिफेमेशन का केस डाला, उसमें उन्होंने एक अपनी लेट पत्नी का एफिडेविट दिया है जो 6 फरवरी 2002 को बना था, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है। वो एफिडेविट मैं आपको शेयर कर रहा हूं। हम आपको बता दें कि देश में, महाराष्ट्र में
धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई एक एफिडेविट ही ये कोई दस्तावेज नहीं होता। कोई धर्म परिवर्तन करता है तो बाकायदा उसका गजट करवाना पड़ता है और सरकारी रिकॉर्ड में सारी चीजें दर्ज होती हैं कि फला व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, सज्ञान जो एडल्ट हो, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो गजट करके उसकी सूचना लोगों तक दी जाती है। इस केस में इस तरह का कोई मामला उन्होंने सामने या प्रूफ नहीं लाया है। पूरा परिवार दोहरी पहचान बनाए रखा। पिताजी का दोहरा पहचान दाऊद और ज्ञानदेव के नाम से उनकी पहचान बनी रही। जिस तरह से एफिडेविट ला रहे हैं, मां का भी दोहरा पहचान उन्होंने बनाकर रखा, बहन की दोहरी पहचान है और स्वयं समीर वानखेड़े की भी डुअल आइडेंटिटी बना के रखकर उन्होंने पूरे लोगों को धोखा देने का काम किया, फर्जीवाड़ा रचने का काम किया। जीवन में मुसलमान बने रहे, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कागज में हेरा फेरी करके शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाया, सरकारी नौकरी हासिल की, एडमिशन में लाभ लिया और हद ये हो गई कि उनकी पत्नी के देहांत के बाद, कोकिला बहन अस्पताल में उनका देहांत हुआ था, कॉज ऑफ डेथ का कागज लेकर महानगर पालिका के जो ओशीवरा में शमशान भूमि है जहां पर डीआरके इशू होता है अंतिम संस्कार के लिए, वहां पे 16 अप्रैल 2015 को एक सर्टिफिकेट बनाया गया जिसमें मुस्लिम करके सर्टिफिकेट इशू हुआ। वो सर्टिफिकेट लेकर ओशीवरा वेलफेयर मुस्लिम कब्रिस्तान जोगेश्वरी वेस्ट में उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रिचुअल के हिसाब से किया गया। स्वयं समीर वानखेड़े ये कहते रहे हैं कि मैं अपनी मां के कब्र पे जाता हूं तो मेरी लोग पीछा करने का काम करते हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि एक दिन बाद 16 अप्रैल 2015 को फिर डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया, जो हिंदू लिख कर डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया। ये दोहरी पहचान का और एक मामला सामने आया है, फर्जीवाड़ा सामने आया है कि जीते जी तो लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, लेकिन एक महिला के देहांत के बाद भी उन्होंने फर्जीवाड़ा छोड़ा नहीं। अंतिम संस्कार के लिए एक अलग सर्टिफिकेट बनवाया और सरकारी रिकॉर्ड पर चीजें सामने रखने के लिए दूसरा सर्टिफिकेट बनाया ताकि उनकी संपत्ति मिले। नौकरी शेड्यूल कास्ट की हिंदू बनकर ली थी, वहां पे कागजात दाखिल करना है तो वो दाखिल करना पड़े। इनके फर्जीवाड़े का और एक सबूत हमने लोगों के सामने रखा है। निश्चित रूप से आज कोर्ट में जिस तरह से सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के खिलाफ वो डबल बेंच में गए। हमारे भी वकील वहां हैं, सारी बातें सामने रखेंगे और न्यायालय में वो मामला चल रहा है। दूसरी एक बात आज बहुत महत्व की सामने आई है कि मुंबई शहर के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, जो मुंबई के कमिश्नर थे, बाद में उनका तबादला होमगार्ड में कर दिया गया। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक आरोप लगाया कि 100 करोड़ की उगाही का उन्हें टारगेट दिया गया था, जो कि मामला अदालतों में है। आरोप लगाने वाला स्वयं फरार हो गया। वजह के नाम से आरोप लगाया गया, वजह कह रहा है कि इस तरह की कोई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं। स्वयं परमवीर सिंह जी ने चांदीवाल कमीशन के सामने कोई भी हमारे पास दस्तावेज नहीं या कोई प्रूफ नहीं जो हम सिद्ध कर पाए, फिर भी अनिल देशमुख जी को सीबीआई ने, ईडी ने मामले में उलझाकर उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। न्यायालयीन लड़ाई है, लड़ी जाएगी, वे निर्दोष है हम साबित करेंगे। लेकिन जिस कमिश्नर के आरोप पर ये कार्रवाई शुरू हुई, वे स्वयं
मई महीने से फरार हो गया। पुलिस लगातार उन्हें खोज रही थी। सम्मन चांदीवाल कमीशन से जारी हो रहा था, पुलिस की तरफ से जारी हो रहा था। 5 मामले उन पे दर्ज हुए। एक मामला गोरेगांव में उगाई का, दूसरा मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उगाई का, कोपरी में थाने नगर पुलिस स्टेशन, बाजारपेट पुलिस स्टेशन, 4 उगाही के मामले उन पे दर्ज हुए हैं। एक अपने जूनियर को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज हुआ है। और ये सारे मामले होने के बावजूद वो देश में कहीं छुपे हुए थे, वो उन्हें ही पता है। आज वे आ रहे हैं पुलिस के सामने, लेकिन वे कब आए? जब मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें भगौड़ा घोषित करने का काम किया। उनकी संपत्ति क्रुक करने तक मामला पहुंच गया। उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए और कहने लगे कि मेरी जान को मुंबई पुलिस से खतरा है। कोई कमिश्नर को जो उसका अगवा रह चुका हो, उसे उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर गुनहगार होगा तो गिरफ्तारी होगी। अगर कोई कानूनी अड़चन है तो निश्चित रूप से सरकार उसे दूर करने का काम करेगी।